वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो, एक और कंपैरिजन। और जैसा आप सब ने डिमांड किया था, ये होने वाली है द बैटल ऑफ द बेस्ट बेस वेरिएंट्स। यस, टाटा हैरियर ईवी एडवेंचर 65 वर्सेस द VF7 अर्थ। दोनों की प्राइसिंग सिमिलर है, दोनों की परफॉर्मेंस सिमिलर है और बहुत सारी सिमिलैरिटीज होने के साथ साथ दोनों बिल्कुल अलग अलग कार्स हैं। क्या डिफरेंसेस है, क्या की डिफरेंसेस है, कौन सी गाड़ी किस स्पेक में बेटर है, वो सारी चीजों को चलो आज डिस्कस करते हैं। आप अगर इन दोनों गाड़ियों में कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो जाएगी। सो वीडियो को पूरा देखना सो दैट कि कोई डिटेल मिस ना हो जाए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। सो वीडियो स्टार्ट करने के पहले गाइस, मैं आपको आप सबने मेरे को VF7 अर्थ, हैरियर ईवी का बेस मॉडल एडवेंचर 65 और XEV 9S जो नई गाड़ी आने वाली है, जनवरी एंड तक में वो गाड़ी आना स्टार्ट होगी, उसके बेस वेरिएंट को भी कंपेयर करने के लिए बोला था। On purpose, I am not comparing the 9S right now. उसके लिए एक अलग से वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा, बट फिलहाल क्योंकि ये 5 सीटर ऑप्शन है, इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। वो वीडियो भी जरूर से आपके लिए लेकर आएंगे, बट थोड़ा समय दीजिए, बिकॉज 9S पर एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाने वाला हूं, जहां पर 9S के सारे वेरिएंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। उसके बाद जब वो समझ में मुझे आ जाएगा, तब उसके साथ में एक और कंपैरिजन वीडियो आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट द स्क्रीन। और मैं यहां पर एक अपने ट्रस्टेड वेबसाइट पर जाकर इन दोनों कार्स को जो है वो कंपेयर करने वाला हूं। सबसे पहली चीज बता दूं आपको कि ये दोनों के दोनों बेस वेरिएंट्स है, बट both these base variants are feature loaded in itself. One has better features in aspect A, the other one has better performance as an aspect B. So दोनों को हम equal comparison करेंगे, and of course I've driven these cars so I know the capabilities. सबसे पहले अगर प्राइस की बात करें तो अपना जो विनफास्ट का VF7 है, that is around 20.89 plus you get some additional discounts as an introductory offer which can amount up to 75,000. Then is your Tata Harrier EV Adventure 65 with a 65 kilowatt hour battery pack at 21.49, which is 21.5 lakhs. I don't think they are running in discounts, but if they are, you can check out with your dealerships. But then again, a price difference of about a lakh, but is it justified? Should you still buy the Harrier by paying more money over the VinFast, which might give you better driver assisted features? Let's find out. Now first, let's start with the battery pack. On the VF7 we have the 59 kilowatt hour battery pack, LFP battery, and the Harrier has a 65 kilowatt hour LFP battery pack as well. Range की बात करें तो approximately 438 kilometers range is what VinFast is claiming, whereas your Harrier is claiming 538. Realistically, what I am getting to here is the VF7 is giving you around 350, whereas the Harrier is giving you around the 65 kilowatt, around 380 to 400. So there is definitely a benefit in Harrier in terms of range. Harrier is a winning car in this case. Talking about the performance, यहां पर भी मुझे लगता है कि Harrier ज्यादा मजेदार होगी चलाने में than the VinFast VF7 का बेस वेरिएंट which is Earth, because 315 न्यूटन मीटर टॉर्क, 235 235 bhp का पावर compared to a 174 bhp and a 250 न्यूटन मीटर टॉर्क. Of course there is a difference, and talking about the size of the car, they are more or less the same. In fact, Harrier is a bigger, taller and a wider car. We'll talk about the dimensions, but yeah, performance and battery and range, Harrier is a clear winner, but VF7 for a base variant with a 59 kilowatt is not bad at all. Both are capable of AC charging with up to 7.2 or 7.5 kilowatt hour and DC up to 100, and this one up to 120 kilowatt. So वहां पर भी more or less is the same. Charging time की बात करें, VF7 can charge with a DC fast charger between 10 to 70 in 24 minutes and 20 to 80 within 25 minutes. So more or less it's going to be the same for the charging time as well. So same when it comes to charging capabilities.
Both the car comes with an option for you to buy the AC charger. Now I personally feel that they charge, the dealerships, they charge a lot on the AC fast chargers. There are quite a number of trusted companies. You will find the link in the description. So I have tried PM Electronics, Pulse. Pulse is very good. In fact, they have some sort of a tie-up with a leading EV brand as well. And there is Zef Point as well. All these are good, guys. सारी की सारी चार्जेस जो हैं वो अच्छे हैं. 7.2 किलोवाट के चार्जेस अंडर 25,000 आपको मिल जाएंगे, which is a straight saving of 25,000 over there. So the VinFast is a front wheel drive, while whereas your Harrier is a rear wheel, which will be helpful in your hilly areas. So यहाँ पर भी I will give it a thumbs up. For Indian hilly areas, they will prefer Harrier EV than the VinFast. सस्पेंशन की बात की जाए गाइस, देखो यहां पर कह तो रहे हैरियर में मल्टी लिंक है, होगा भी, आई डोंट नो, बट आई हैव ड्रिवन बोथ द कार्स एंड द सस्पेंशंस इन बोथ द कार्स आर अमेजिंग. You glide over these potholes easily, you don't feel the bump. स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर में अगर आप आराम से गाड़ी को निकालो तो पता ही नहीं चलता, और जोर से निकालो तो ग्लाइड कर जाएगी. सस्पेंशन के मामले में आई गिव थम्स अप टू बोथ द कार्स. डायमेंशन एंड कैपेसिटी, तो एज आई सेड, हैरियर इज अ बिगर, wider and a taller car, which will give it a more dominating road presence, whereas VinFast is a sleek, sporty looking car with a nice, a coupe style design, which will give it a very sleek. Somebody who is not into bulky cars can go for the VinFast VF7. Looks are subjective. You tell me, which car do you like in the comment section? Do you think the VF7 looks good or the Harrier looks better? You can of course see the other dimensions and the capacity in front of your screen. यहाँ पर boot space में अपने को 537 का VinFast में मिल रहा है और more or less 550 का अपने Harrier में भी जो है वो आ जाता है. Comfort and convenience की बात करें गाइस, देखो आपके स्क्रीन के सामने है, आप चाहो तो पॉज कर करके देख लो, बट मैं बेसिक कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात आपके साथ करता हूं. Harrier की अगर बात करें तो यहां पर आपको एक 10 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ आई बिलीव 8 स्पीकर सेटअप मिल जाएगा, हारमन का या फिर JBL का, आई एम नॉट टू श्योर, वहां पे थोड़ी सी क्लैरिटी मेरे को मिसिंग है. और यहां पर भी 8 स्पीकर सेटअप आपको मिल जाएगा विथ अ 12 इंच screen on your VF7. Now you get a lot of soft touch in your VF7 compared to your Harrier. Harrier also gets soft touch. Both the car gives you vegan और लेदराइट सीट ऑप्शन. सो फैब्रिक सीट भी नहीं, लेदराइट सीट आपको बेस वेरिएंट से ही जो है मिल जाती है. ड्राइवर के लिए इन द VF7 यू गेट electrically adjustable driver seat but no memory function. I prefer Harrier with manually adjustable seats because electrically adjustable seat without any memory function is of no use whatsoever in my opinion. आप बताओ कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हो. Both get cruise control, both get reach and telescopic steering wheels, and rear AC vent आपको मिल जाते हैं. You do not get any sunroof in both the cars, so I think that is also people who are very realistic in their choices कि कौन सी गाड़ी में sunroof चाहिए नहीं चाहिए, बट जो मेन फीचर जो है वो चाहिए, तो ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक हो जाती है. प्लस गाइज, सबसे पहली बात, अभी तक वीडियो कैसी लग रही है ये मुझे बताना. आप कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स, जैसे मैंने बोला VF7 या फिर Harrier EV का बेस वेरिएंट, ये जरूर से बताना विच वन डू यू थिंक इज अ मोर वैल्यू फॉर मनी. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं अपने थॉट्स आपके संग जरूर से शेयर करूंगा. लाइक बटन को प्रेस करना अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, एंड ऑफ कोर्स अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे रुके हो और अभी तक वीडियो को देखे हो और सब्सक्राइब नहीं किया, देन कर लो यार, हिट द सब्सक्राइब बटन. फैमिली को बड़ा करना है, आगे तक जाना है, और साथ में जाएंगे तो बहुत मजा आएगा. उसके साथ आई एम ऑल्सो अ कार बाइंग कंसल्टेंट. आई प्रोवाइड एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस टू पीपल हु आर कंफ्यूज्ड. Many have tried, they all have been happy and satisfied. There is a link in the description and a number on your screen. You can definitely reach out to me if you need any help or guidance. Moving on with the video, Harrier में सिर्फ और सिर्फ एक rear camera आता है, whereas your VF7 gives you a 360 camera from the base model itself. So यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी के मामले में, ड्राइवर असिस्टेड फीचर्स के मामले में, आई विल गिव अ थम्स अप टू द VF7 बिकॉज गिविंग अ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 360 degree camera, and
speakers, 8 speakers and all those things right from the base variant with soft touch material and everything is really really good. 19-20 का फर्क ही है, या फिर बोलूंगा 20-21 का फर्क है, but the thumbs up will go to the VF7. So far it is quite balanced. As I said, somebody who really likes a dominating presence on the road can go for the Harrier EV. Somebody who like a sporty can go for the VF7, but that's not just it. हम बात करेंगे towards the end of the video, जहां पे मैं अपने final thoughts आपके संग में जरूर शेयर करूंगा. अनदर कंफर्ट की अगर बात करें तो रेयर पैसेंजर को सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर सिर्फ VF7 में मिलता है, अपने हैरियर ईवी में नहीं मिलता है. कुछ एक इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट पे यहां पर एक्यूरेटली अपडेटेड नहीं, बट जैसा मैंने बोला, आई हैव सीन दीज कार्स, ड्रिवन दीज कार्स, सो आई नो फॉर अ फैक्ट कि क्या है और क्या नहीं है. वन टच अप डाउन फॉर ऑल विंडोज इन द VF7 and none for the Harrier EV. Only power windows now. That is very very disappointing in my opinion. These are actual practical features जहां पर एक गाड़ी good से great और great से excellent बन जाती है. You get the ventilated seats for the VF7 and not with the Harrier. तो यहां पर जैसा मैंने आपको बोल रहा था कि ड्राइवर असिस्टेड फीचर्स में VF7 बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी आपको खरीदने के लिए. बट देन अगेन, रुको जरा, सबर करो. मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, वो मैं करूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो. कुछ इस तरह से अलॉय व्हील्स का डिजाइन जो है, अलॉय व्हील्स आपको आई बिलीव दोनों में ही 19 या 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं. दोनों में प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, कनेक्टेड DRLs मिल जाते हैं. ऑल दोज थिंग्स आर ओके. आई एम नॉट टू कीन अबाउट दैट बिकॉज दैट डज नॉट रियली makes or breaks the car. What makes or breaks the car is the practicality, the performance, the range, the battery and the reliability on the brand itself. बाकी कुछ एक चीजें जो है आपके स्क्रीन के सामने में मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आप पॉज कर करके अपने स्क्रीन को देख सकते हो. इन द मीन टाइम गाइज, जो मैं ये स्क्रॉल कर रहा हूं, आपको बता दूं कि इंफोटेनमेंट में जैसा मैंने बोला कि शायद से 8 स्पीकर्स है हैरियर में, बट नहीं, मुझे लगता है 6 स्पीकर ही हारमन के हैं विद द 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, बट ऑल्सो अ 10 इंच MID, whereas the VinFast has just one screen with all the functionalities in that one screen, including your digital cluster as well. But again, as I said, just have a look in front of your screen. आप यहाँ पर pause करके आराम से जो है वो देख सकते हो. लाइटिंग्स एंड एवरीथिंग इज ऑल्सो मेंशन्ड ओवर हियर. अपने LED DRLs, टेल लैम्प्स, LED कनेक्टेड टेल लैम्प्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर. शार्क फिन एंटीना दोनों कार में हमें मिल जाता है. रूफ रेल सिर्फ और सिर्फ हैरियर में मिलती है, अपने VF7 अर्थ में नहीं मिलती है. और या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बूट ओपनिंग पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक. नॉनसेंस. दोनों के दोनों हाइड्रोलिक स्ट्रट्स के संग में मैनुअली खुलते हैं. पता नहीं कौन अपडेट करता है ये सब वेबसाइट्स को, ऐसा है नहीं. 19 इंच इन योर VF7, 18 इंच इन योर हैरियर EV, जैसा मैंने बोला था. सेफ्टी के मामले में भी जो मैंने बोला 6 एयरबैग्स एंड 7 एयरबैग्स, बाकी सारे फीचर्स हैं. अपने को ADAS के कोई भी फंक्शंस नहीं मिलते हैं. यहां पर दिख रहा है ADAS, बट देयर आर नो ADAS फंक्शंस इन योर VF7 अर्थ और इन योर हैरियर EV बेस मॉडल. आप पूछोगे कि फिर दिखा क्यों रहे हो, तो देखो, I am a simple YouTuber. I can share my gyan with you. So safety, ADAS and all those things are fine. I think that should be it. तो मैं जरा इसे यहां पर स्क्रीन को जो है वो स्टॉप करके कुछ बातें चलो आपके साथ करता हूं. So what are my thoughts? Which one will I go for? Let me put it that way. तो देखो, प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. प्राइस में 1 लाख रुपए का डिफरेंस है, एंड that is not really much of a difference if you have a budget of 22 lakhs. But 22 lakhs के बजट पे सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि Sierra EV का वेट कर सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन आने वाला है. बट देन इफ यू वांट अ बिगर कार, अ कार विच इज अराउंड द 46-4700 mm लेंथ वाली गाड़ी में, तो इफ यू नीड अ बल्कियर, अ बिगर लुकिंग, वाइडर लुकिंग कार, मोर डोमिनेटिंग रोड प्रेजेंस, then Harrier EV is the car for you. If you want driving experience, जहां पे आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस मजेदार मिले, पेपीनेस मिले, थ्रिल मिले, दोनों गाड़ियां अच्छी है, बट Harrier EV will be better. रेंज की बात करें, Harrier EV will give you more range, बट VF7 कुछ कम नहीं, वही 300, 350 से 350 की रेंज, 350 to 380
your VF7 can also get you. Features की बात करें, then VF7 is the right car for you. It gives basic driver assisted features which is absolutely needed from the base variant itself. Now that is fantastic. Looks are subjective, features are necessary in my opinion. Price, as we said, it's more or less the same. So why and which one should you go for? So if you ask me, I generally don't always go with the feedback of what's there in the media only. I go with कस्टमर फीडबैक ऑल्सो. हमारी पैन इंडिया कम्युनिटी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. वहां पर रियल टाइम कस्टमर्स, क्लाइंट्स, ओनर्स जिनके संग आप बात कर सकते हो. सो आई डोंट ड्राइव द कार दैट फास्ट. आई लाइक टू क्रूज आराम से. सो VF7 विल बी माई चॉइस. वाई? बिकॉज प्रैक्टिकल भी है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, बड़ी भी है, स्पेस भी अच्छा है, बट ड्राइवर असिस्टेड फीचर्स ज्यादा है. बट एट द सेम टाइम वो स्क्रीन थोड़ा सा मेरे को इरिटेट करता है. वो जो सिंगल स्क्रीन वहां पे दे दिया गया है वो भी टिल्टेड है टुवर्ड्स द ड्राइवर. नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो अगर सीधा रहता तो सही था, या फिर एडजस्टेबल देते कि अगर मैं अकेले ड्राइव कर रहा हूं तो मैं उसको टिल्ट कर लूं मेरे तरफ, या तो अगर मैं अपने पार्टनर के संग ड्राइव कर रहा हूं या कोई को पैसेंजर है तो मैं सीधे कर दूं या उनके तरफ टिल्ट कर दूं, सो दैट कि वो मुझे असिस्ट कर पाए. ये थोड़ा सा सोच सकते थे VF7, या फिर फ्यूचर में अगर ये उन तक पहुंचे आइडिया तो कैसा लगा. ये अच्छा आइडिया है, राइट, इन माय ओपिनियन. एंड रिलायबिलिटी की बात करें तो देखो ऐसा है कि हैरियर ईवी की रिलायबिलिटी को लेकर क्वेश्चन नहीं होगा. प्लस फीचर्स कम है, स्पेक्स कम है, तो निगल्स भी बहुत कम आएंगी. तो अगर मैं हैरियर ईवी खरीदूंगा तो मैं मोस्ट प्रोबेबली उसका बेस वेरिएंट लूंगा, बिकॉज मेरे को टाटा के टेक पर थोड़ा सा भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा, बट वो निगल फ्री गाड़ियां तो नहीं बनाते हैं. यू कैन डिनाई दैट, यू कैन इग्नोर इट, बट निगल फ्री या निगल लेस निगल्स के संग में अगर कार्स चाहिए तो विनफास्ट इज अ बेटर ऑप्शन. एंड क्योंकि मैं एक ऑलरेडी टाटा चला रहा हूं, मैं जानता हूं कि निगल्स आती हैं तो एक कंपनी जो है जो ठीक कर सकती है वो भी टाटा ही है. सो रिलायबिलिटी में टाटा के तरफ में झुकाव आता है, बट आई लाइक टू गिव चांसेस टू न्यू कार्स, न्यू कंपनीज, स्पेशली इफ दे हैव अ गुड प्रोडक्ट. एंड VF7 इज अ गुड प्रोडक्ट. कैलकाटा से अगर खरीदना चाहते हो तो मेरे यहाँ पर जो ऑटो हाईटेक है वहां पे जाके मेरा नाम लीजिए. आई एम श्योर समबडी विल असिस्ट यू. आई एम नॉट अगेन नॉट अ प्रमोशनल, और क्या कहते हैं उसको, हाँ मतलब कोई नॉट अ प्रमोशनल वीडियो. बट देन अगेन हैरियर को ना सिलेक्ट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस, बिकॉज द कार हैज सच अमेजिंग परफॉर्मेंस, डिसेंट रेंज, बेसिक फीचर्स जो चल जाएगा. अगर आप ड्राइवर नहीं हो, अगर आप गाड़ी में बैठकर मजा लेना चाहते हो तो फिर हैरियर ईवी में मजा है. बिकॉज ड्राइवर को क्या ही 360 और क्या ही रेयर कैमरा, वो बंदा अपना गाड़ी चलाता है. तो आप अगर बैठ के मजा लेना चाहते हो टशनबाजी के लिए, तब तो हैरियर ऑफ कोर्स अच्छी गाड़ी है. बाकी जैसे मैंने बोला, कंफ्यूज्ड हो तो यू कैन रीच आउट टू मी, आई कैन हेल्प यू विद दैट. मैं VF7, पर अब इतनी सारी गाड़ियां देखने के बाद में आई वुड प्रॉब्ली गो फॉर द VF7 अर्थ. वेरी प्रैक्टिकल, फीचर लोडेड कार, और मुझे इतनी थ्रिल ड्राइविंग पसंद नहीं है. सो दैट्स दैट. सो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो. लगने से एक लाइक करना, प्यार दिखाना, कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइब करना चैनल को अभी नहीं किए हैं तो, और प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. वहां पर भी मेरे काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे. ऑन दैट नोट, बहुत सारी फ्यूचर वीडियोस को लेके आने वाला हूं, बहुत सारे फ्यूचर कंपैरिजंस को लेके आने वाला हूं. कमेंट सेक्शन में वही बताना अगर आपको कोई और कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो. फॉर नाउ दिस इज निखिल साइनिंग ऑफ. मिलता हूं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस.